ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? اللہ کے پاک نام سے نہایت رحم کرنے والا۔ آج کا اجلاس ہمارے سینئر ترین نامور ترقی پسند ادیب افسانہ نگار اور استاد پروفیسر ڈاکٹر عالم خان کی یاد میں تعزیتی اجلاس ہے، جس میں آپ احباب ان کی محبت میں عقیدت میں تشریف فرما ہیں۔ آج کے اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے ملک کے ادب کا مان تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر ریاض مجید خود ایک تعارف ہے، صدارت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عالم خان کے قریبی دوست اور معروف قانون دان جناب ملک امجد حسین ایڈوکیٹ ہمارے خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کارروائی کو میں صدر اجلاس سے کارروائی کو آگے بڑھانے کی اب گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھیں گے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری جناب غلام ربانی آنس بے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب روز اجلاس زیر صدارت اشفاق بابر صاحب شروع ہوا۔ جناب فواد حسین عین عاجز صاحب نے چاند ماری نظم پیش کی۔ سب سے پہلے قمر عباس قمر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے اوزان کے چند مسائل کی طرف توجہ دلائی، جسے باقی تمام نظم فاعلات فاعل فعل میں تحریر شدہ ہے، مگر پھر کوئی رنگ لہو میں رقصاں میں تھوڑی خرابی ہے، اس طرح جیسے کروایا گیا ہو باور میں بھی کچھ رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد وقاص احمد صاحب نے فرمایا کہ نظم کی ابتدا کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا تھا، جس سے قاری کو متاثر کیا، لیکن دوسرے بند سے نظم کھل کر سامنے آتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا اس نظم کے ساتھ کہ یہ نظم خوبصورتی سے پڑھی بھی نہیں گئی، اور مزید فواد صاحب نظم کی ڈرافٹنگ پر محتاط نہیں رہے۔ اس کے بعد جناب صدر نے فرمایا کہ رد ہوا ہوں قبول ہو کر بھی، اس کی لائن پنچ لائن بنتی ہے، اور عادل صاحب کی پچھلی تخلیقات سے قدرے بہتر نظر پیش کی گئی ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ پھر قمر عباس قمر صاحب نے دوبارہ تبصرہ کیا کہ یہ نظم شاعر نے ایک کیفیت میں تحریر کی ہے اور اپنی خماری کی کیفیت کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پھر راکم تحریر نے بیان کیا کہ پھر کوئی رنگ لہو لفظ کی بجائے خون کر دیا جائے تو بہتر ہے، اسی طرح پھر وہی راتیں کی بجائے رات اور جان لیوا ہے مگر جاری ہے کی بجائے جان لیوا ہے، پھر بھی جاری ہے کیا جائے تو اوزان میں بہتری آتی ہے۔ پھر محترم وقاص احمد صاحب نے جیسے بیٹا کسی کی ریاست کا جیسے فکروں کو غیر ضروری قرار دیا۔ اس کے علاوہ تیسرے بند میں آخری شعر کو دوسرا آخری بنا دیا جائے تو کافی بہتر رنگ نظر آئے گا فرمایا۔ اس کے بعد شاعر میں لسانی پختگی، اس کے علاوہ شاعر میں لسانی پختگی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد ڈاکٹر ریاض قادری صاحب نے فرمایا کہ نظم کا شاعر مختصر انداز میں بیان کرنے کا فنکار ہوتا ہے، اور شاعر نظم میں استعمال کی گئی اضافی لائنوں کا ادراک کر کے نکالنا ہے،
پھر یہ نظم خوبصورت ہے۔ نظم میں قاری کو قائل کرنا مقصود نہیں ہوتا، قاری خود ہی قائل ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں ایسی تراکیب استعمال کی گئی ہیں وہ ان کو مکمل شاعر بتاتی ہیں، مگر پیش کردہ تجاویز کو اگر شاعر قبول کرے تو بلا شبہ یہ ایک خوبصورت نظم ہے جس کے ساتھ اجلاس کا اختتام ہوگا۔ سامعین، آپ نے کارروائی سنی، کوئی اس کے بارے میں کوئی وضاحت، کوئی اعتراض یا کوئی بات؟ فرمائیے جناب شکریہ سر۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کارروائی اگلا جو ہے آج کا اجلاس ہے۔ جی گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توصیف صدر صاحب نے کر دی ہے، وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اجلاس کو۔ اس میں میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اظہار احمد گلزار صاحب نے اپنی تشریف جانا تھا، اس میں پڑھوا دیں۔ جی تو میں ملتمس ہوں ارشاد جی۔ ڈاکٹر اظہار احمد گلزار صاحب جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں، میں شاگرد ہوں جی، شاگرد بھی ہیں، جی، پراؤڈ آف تو شاگرد ہیں اور ان کے پاس بہت سرگیات ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جناب ڈاکٹر ریاض ملک صاحب، مہمان خصوصی ملک امجد حسین صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے قریبی دوست ہیں بلکہ بھائیوں جیسے ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق کے تمام منتظمین و اراکین، دیگر مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں حلقہ ارباب ذوق کے تمام منتظمین اور مجلس عاملہ کے تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک اردو ادب کے قوائے ناز، استاد، محقق، نقاد اور ترقی پسند تحریک کے دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم خان کے یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے اور بہت بڑا اسلامی عقیدت ہے۔ زندہ قومیں اپنے لیجنڈز کو اور اپنے ان مشاہیر کو نہیں بھولتی جنہوں نے ادب کی آبیاری کی ہوتی ہے۔ تو آج کا سلسلہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میرا مضمون طویل ہے، یہاں آپ محسوس کریں تو آپ اشارہ کر سکتے، میں بند کرتا ہوں۔ عالمی شہرت کے حامل، نامور محقق، نقاد، افسانہ نگار اور ترقی پسند تحریک کے دانشور استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم خان نے زندگی کی 77 بہاریں دیکھ کر 26 جنوری 2026 کی رات نیند کے عالم میں دائی اجل کو لبیک کہہ دیا، اور 27 جنوری 2026 کو اردو زبان و ادب کے آفتاب جہاں تاب کو فیصل آباد کے محلہ شریف پورہ کے ماں بیٹا کے نام سے منسوب مشہور شہر خاموشہ میں سینکڑوں سوگواروں نے پھولوں کا کفن پہنا کر آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کے جذبات حزین کا نذرانہ پیش کر کے سپرد خاک کر دیا، جس کی ضیاءپاشیوں سے مسلسل 7 اشروں تک اذہان کی تطہیر و تنویر کا اہتمام ہوا اور صفاق ظلمتیں کافور ہوئیں۔ اس ماں بیٹا شہر خاموشہ کی خاک نے اس عنبر فشاں پھول کو اپنے دامن میں سمو لیا جس کی عطر بیزی سے پوری علمی ادبی دنیا مہک رہی تھی۔ رنگ، خوشبو اور حسن و خوبی کے تمام استارے ان کے دم سے تھے۔ ان کا وجود طلوع صبح بہاراں کی نوید تھا اور ان کی تعلیمات، ادبی خدمات اور تخلیقی کامرانیاں تاریک شب میں ستارہ سحر کے مانند تھیں۔ اتنے بڑے مدبر کی وفات کی خبر سے پوری علمی دنیا پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگی۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہے گرام آیا کیا کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم خان دنیا سخن کا ایک معتبر نام تھا۔ نقد و تحقیق ہو، افسانہ نگاری ہو یا نظم و غزل ہو، ہر صنف سخن میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کی علالت، مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ 26 جنوری 2026 کی رات کے کسی پہر حالت نیند میں ان کی روح کف انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ صبح ان کے درینہ ملازم مختار احمد نے جب ان کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ نہ کھلنے پر 15 پر اطلاع دی گئی۔ پولیس کی نگرانی میں تالا توڑا گیا تو انہیں
बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। डॉक्टर साहब लाहौर में तवील अरसा से अकेले रहते थे, 2 बेटे थे, बड़े हुए तो दोनों बैरून मुल्क सेटल हो गए। उनकी ज़िंदगी कई किस्म के मसाइल से दो चार रही, ताहम उन्होंने कभी भी अपने दुखों का रोना किसी के आगे रोने से हमेशा इज्तनाब किया। उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस साने इर्तिहाल की खबर बर वक्त न हुई। अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल हमसे उठ जाए और उसकी सनौनी हम तक न पहुँचे। कितने बेखबर हैं हम लोग। जिंदा कौमों का ये शार नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। ऐसी गफलत मुजरमाना होती है। शायद ये हमारी गफलत ही की सज़ा है कि डॉक्टर मोहम्मद आलम खां को यूं एकाएकी हमसे छीन लिया गया है। सामईन मोहतरम, मौतुल आलम कि एक आलम रब्बानी की मौत को आलिम की मौत करार दिया जा सकता है। आलिम रब्बानी की मौत से ऐसा खला पैदा होता है जो आसानी से पुर नहीं होता। यानी जब आलिम का इंतकाल होता तो इस्लाम में एक रखना पड़ जाता है जो आसानी से पुर नहीं होता। जैसे कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब उनकी अदम मौजूदगी रह कर हमें उनकी याद दिलाएगी और वक्त के साथ उनकी जुदाई का घाव बढ़ता चला जाएगा। मादूद चंद लोग होते हैं जो कमिटमेंट, जोहद मसलसल और अज़्म हिम्मत का इस्तारा बन जाते हैं। ऐसे ही एक अनथक शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद आलम खान था जो अपने शिगिर्दान और दोस्तों पर साहिबान बने रहते थे। बैरून शहर या बैरून मुल्क से कोई शायर अदीब लाहौर में वारद हो और वो उनके काबू में ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं था। दोस्तों से उन्हें मलवाने, उसे इज़्ज़त देने और उसके काम की तहसीन और सताइश में ये वन मैन आर्मी पेश रहती थी। फिर उनके खलूस बरे हुक्मनामे को पसो पेश की नज़र करना किसी के बस में नहीं था। वो अपने शागिर्दों के सच्चे खैर का और हमदर्द और दोस्तों के जानसार साथी बनकर दिखाते। उनका वजूद किसी नेमत गैर मुतरक़बा से कम नहीं था। डॉक्टर कासिम यकूब इस्लामाबाद से उनके साने इर्तिहाल पर लिखते हैं, डॉक्टर आलम खान ने अपने शहर लायलपुर को कभी नहीं बुलाया। वो तवातर से लायलपुर को याद करते। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हर ईद त्यौहार का दिन लायलपुर में गुजारा। डॉक्टर आलम खान जब घंटा घर के आसपास पाए जाते तो हम समझते कि कोई ख़ास मौका है। वो हर यादगार दिन पर फ़ौरन अपने आबाई शहर भागते, लाहौर की भरी मजलिसें छोड़ आते और हमें वक्त देते। चिन्योट बाज़ार में उनकी महफिलें और झंडे होटल पर उनकी गुफ्तगुएँ कौन बुला पाएगा। ऐसा शख्स जिसे ज़माना याद रखेगा। उन्होंने अफसाने पर बहुत जम के काम किया। उनकी यादगार किताब उर्दू अफसाने के रोमानी रुझानात कुछ वर्ष पहले दूसरी मरतबा मजलिस तरक्की अदब लाहौर से शाया हुई। अफसाने के अलावा उन्हें आप बीती पर कमाल अबूर हासिल था। शायद ही कोई आप बीती हो जो डॉक्टर साहब ने ना पढ़ रखी हो। उनकी ज़िंदगी जिंदा, मुतहर्रिक और सरवतमंद जमालियत की आकाश थी। अब देखिए वो मरने के बाद भी लायलपुर को नहीं भूले और पीपल्स कॉलोनी में अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुए। यही वो मोहल्ला, यही वो घर, यहाँ मैं मुतअद्दिद बार उन्हें छोड़ने रात गए उनके साथ रवाना होता। आज वो अकेले रह गए हैं उस तरफ जहाँ सब ने जाना है और फिर कभी लौट के नहीं आना। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान 17 अक्टूबर 1948 को लायलपुर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक सरकारी क्वार्टर में राणा मोहम्मद उमरुद्दीन खान के घर पैदा हुए। डॉक्टर साहब का ख़ानदान 1947 में तकरीबन 40 घरानों के साथ हिंदुस्तान के इलाका खानपुर मंडियाँ से हिजरत करके गुजरांवाला के करीब एक गांव अनाओ में आकर आबाद हुआ। यहाँ उनके ख़ानदान को गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीनें अलाट हुई। उनके वालिद के 6 भाई थे। भाइयों ने जायदाद की तकसीम की बात की तो उमरुद्दीन खान अपनी बीवी और औलाद को साथ लेकर लायलपुर आकर आबाद हो गए। फिर लायलपुर उनका मुस्तकिल रहशगाह बन गया। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के 3 भाई और 3 बहनें थीं। आप अपने बहन भाइयों से सबसे छोटे थे। उनके वालिद ने रेलवे में मुलाजमत कर ली और साथ ही रेलवे के क्वार्टरों में उनके वालिद को रहायश मिल गई। एक दफ़ा इस आबादी को जो क्वार्टरों में रहती थी वहाँ से उठा दिया गया और लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुतबादल घर दिए गए। जो घर उन्हें मिला वो पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में था। तो वहाँ मकामी स्कूल से उन्होंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की। प्राइमरी के बाद डॉक्टर आलम खान ने मुस्लिम हाई स्कूल तारक अब्बास से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। स्कूल में उनकी सरगर्मियाँ बदलती गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनका अदब से लगाव होने लगा। उसी दौरान आप स्कूल की बज़्म अदब के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और इसी वजह स्कूल में नुमायाँ होने लगे।
फ़न तकरीर कुछ कुदरत की तरफ से था, बाकी मानदा उन्होंने अपनी ज़ाती काबिल से बेहतर किया। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट तालीम गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद से हासिल की। कॉलेज में अदबी सरगर्मी में हिस्सा लेते रहे। कॉलेज के इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बीए की तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज धोबीगढ़ में दाखिला लिया और अदब के साथ साथ सियासत में भी दिलचस्पी लेने लगे और कॉलेज की एक सियासी तंजीम NSF नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि बाएं बाजू का सियासी वर्ग होता था, दौरान तरीम इंकलाबी लोगों से रवाबत तेज़ होते गए। अब शहर आने जाने लग गए। शहर में नित नए लोगों से मुलाकातें तेज़ होने लगीं। रात गए घर वापस आते और अक्सर रात को देर से आने की वजह से घर का दरवाज़ा ही कई बार नहीं खुलता था। रात बाहर ही गुजारनी पड़ जाती थी। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान की खामोश तबीयत की वजह से उनके महल्लेदार उनको नहीं जानते थे। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बायस ख़ास तौर पर बाएं बाजू की हम जमात से ताल्लुक़ होने की वजह से उन्हें चंद एक दफ़ा कैद का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में उर्दू अदबियात में MA करने के लिए दाखिला लिया, मगर सियासी सरगर्मियों की वजह से इम्तहान प्राइवेट दिया और पास हो गया। MA उर्दू अदबियात करने के बाद मोहम्मद आलम खान ने मुआशी मसाइल की वजह से मुख्तलिफ काम किए। मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल, TV और रेडियो से मुंसलिक रहे। नवाए वक्त में 1 साल तक कामयाब सहावत की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद टीचिंग से मुंसलिक करना था, तो छोटे छोटे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते रहे, मगर कहीं कदम जम न सके। बिलाखिर HESN कॉलेज लाहौर में मुस्तकिल तौर पर ज्वाइन कर लिया। इस तरह मुआशी मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया। जब मुआशियत की फ़िक्र न रही तो उन्होंने अपने दरीना ख्वाब यानी PhD करने का इरादा कर लिया। मोहम्मद आलम खान ने बावजूद हज़ार मुश्किलात उर्दू अफसाने में रोमानी जहानत के इनवान से तहकीकी मकाला लिखकर पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के मशागल वक्त के साथ साथ बदलते रहे। बचपन में उनका महबूब तरीन मशगला खाना बदोशों की झुग्गियों में जाकर बैठना था। फिर बाद में प्राइमरी, मैट्रिक और कॉलेज की सतह पर उनके मशागल बतदरीज बदलते रहे। डॉक्टर मोहम्मद खान के मशागल में चंद ये हैं। महफिलबाजी का ये मशगला डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के यहाँ ऐसा मशगला था तो जो रोज़ अव्वल से तादम मर्ग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। उनकी ज़िंदगी में दोस्तों और उनकी बातों के सिवा और कुछ नहीं था। जवानी में तो खैर आधी रात तक दोस्तों की महफिल को सजाना, कहवा खाने, थड़े, होटल, घर उनकी महफिल के ठिकाने थे। और वो पीपल्स पार्टी के खैर खा होते हुए भी इंकलाब की बातें किया करते थे, बिल्कुल सितार चौधरी की तरह, जो उनका और उनका हम रकाब और बदर चौधरी का सियासी रकीब, मगर पक्की दोस्ती वज़ीर ममलकत मियाँ ताउल्ला से थी, वरना वो कभी इंजीनियर न बनता। जेल में नज़रबंदी में सत्तार चौधरी भी उनका हमसाया था। एक और कैदी भी था उसी बैरक में, उसका नाम गुलाम हुसैन नेहरू था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान बताते थे कि मेरी गुलाम हुसैन नेहरू से गहरी दोस्ती हो गई। उसके मुलाकाती 2 चीज़ें बड़ी बर वक्त उसे पहुँचाया करते थे, एक घर का पका हुआ खाना और दूसरा अखबार। डॉक्टर आलम खान बताते थे कि मैं उसका खाना और अखबार दोनों चीज़ें बड़ी रगबत से खाया करता था, लेकिन अखबार कभी आलम खान साहब को हज़म नहीं होता था। लिहाजा अखबार वो कैद की तरह गुलाम हुसैन नेहरू के दामन में उगल देता कि वो दूसरों से अनपढ़ था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान के रेलियो वाले घर के सामने एक कोठी थी। ये बात बड़ी दिलचस्प है। जिसकी कोई चारदीवारी न थी, उसकी हदूद केले के पौधों ने मुतय्यन कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे केलों वाली कोठी कहते थे। मोहम्मद आलम खान सड़क पार करके उस कोठी में जाकर उसमें क्याम पजीर लायलपुर बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर को हसरत से देखा करते थे। उसकी ज़िंदगी आलम खान के लिए आइडियल की हैसियत रखती थी। वो अच्छे शायर भी थे। उनका नाम मंजूर अहमद मंजूर था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान बताते थे कि मंजूर साहब रोज़ाना सुबह पुरकशिश लिबास पहने, दाएं हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग लिए और बाएं हाथ में एक छड़ी पकड़े घर से बाहर निकलते और आकर मूरसनुमा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाया करते थे और अपना बैग भी किसी को नहीं पकड़ाते थे। मुझे उनकी ज़िंदगी को और बड़ा रश्क आया करता था, तो उनको देखकर मुझ में 2 ख्वाहिशात उभरती थीं। अव्वल ये कि ऐसा घर मेरे पास हो, दूसरा ऐसी ही गाड़ी भी हो। बाद में उम्र के एक हिस्से में जाकर वैसी गाड़ी तो मैंने ले ली, मगर वैसा घर न ले सका। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान बताते थे कि लाहौर में अच्छा सा घर बनाने के हवाले से वो कहते थे कि लाहौर में कभी घर बनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि मेरे पहले से 2 घर मौजूद थे। आखिरी टच। हालांकि ये डॉक्टर आलम खान के बचपन का ख्वाब था, मगर आहिस्ता आहिस्ता नज़रिया बदल गया। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान कहा करते थे कि अब मैं किसी घर की ख्वाहिश नहीं रखता। ये उनकी दरवेशाना तर्ज हयात थी कि कोई भी मेहमान आता था तो खाना साथ फातिमा मेमोरियल अस्पताल के आलीशान मेस से आता था और आप खुद वो सूखी रोटियां खाते या क्लब में आलीशान खाना।
इसको आप ना जाने क्या समझेंगे। ये वाक़या एक दरवेश इंसान का है जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है। लोग डॉक्टर मोहम्मद आलम खान को एक आम इंसान समझते थे, लेकिन हकीकत में वो आम इंसान नहीं था, वो ख़ास और वाक़ई नायाब शख्स था। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने ज़िंदगी के लिए, अदब के लिए और सियासत के लिए तवील जद्दोजहद की, जो उनके शब रोज़ का सफ़रनामा था। लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद आलम खान तालीम से फ़रागत पाकर तलाशी रोज़गार के लिए 1970 में लाहौर आए, तो उसने देखते ही देखते लाहौर को फ़तह कर लिया। अपने अज़्म मुसम्मम से, अपनी फ़नी रियाज़त से, बातिन के उजलेपन और मन की सुंदरता से, अपने खुलूस और मोहब्बत से, और अपनी आवाम दोस्ती कमिटमेंट से। ग़ुलाम जिस्मों का नोहा, चंद नए मसाइल, अदबी मसाइल, उर्दू रोमानी तहरीक के रुझानात, हिजरतों के शायरों की यादगार तसानीफ़ात हैं। इस पर बहस करने से वक्त खासा दरकार है। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने क़ारीन अदब के ज़ौक़ सलीम की नमू और फ़िक्र ख्याल को महमेज करने के लिए जो बेमिसाल जद्दोजहद की और सब्र तहम्मुल की जो मिसाल कायम की, उसकी बिना पर तारीख़ हर दौर में उनके नाम की ताज़ीम करेगी। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। खुदा रहमत कनंद ई आशिकाने पाक तीन तरह।